So the South-South and triangular cooperation South-South and triangular cooperation is more than a diplomatic phrase. This article was in news. This article came in The Hindu. So we will understand what South-South and triangular cooperation is and when was it formed and its importance for the developing countries, right? So with only a third of the time left before the 2030 deadline for the Sustainable Development Goal, the urgency of reimagining global cooperation has never been more pressing. So the 2030 is the deadline for achieving the Sustainable Development Goals, right? The 17 Sustainable Development Goals which have been decided, they have to be achieved by the year 2030 and we are already in 2025. So almost less than a third of time is left for achieving these targets, right? So this is what this article is talking about, ki how the South-South cooperation and the triangular cooperation basically can help in achieving the Sustainable Development Goals target, right? और South-South and triangular cooperation जो है वो अभी कैसे एक important pressing need बन गया है given the global geopolitical situation, given the volatile that world is facing, also given that the protectionism is on the rise in the global arena. Many countries are imposing tariffs, right? The US imposed tariffs, right, recently. So in all these cases, this global South-South and triangular cooperation can come to aid, right? So let's understand it. Among the most promising frameworks for the collective progress is the South-South and triangular cooperation. So the article is saying that the South-South and triangular cooperation can serve as the most promising framework, right, for collective progress. Collective progress of what? Collective progress of developing countries. This is what it is talking about. Now, first formalized through the Buenos Aires Plan of Action in 1978. This program, the South-South and Triangular Cooperation Program basically was formalized through the Buenos Aires Plan of Action जो आपका 1978 में आया था. और South-South Triangular Cooperation has now evolved into a vital mechanism for the development and it offers a cost-effective solution which is replicable and context relevant. It means that tailor-made solutions की बात कर रहा है ये basically, जो context specific solutions है ये उनकी बात कर रहा है और ऐसे solutions जो कि cost effective है ना? Given that कि बजट की कॉन्स्ट्रेंट है, क्लाइमेट फाइनेंस की भी अगर हम क्लाइमेट चेंज को एज अ प्रॉब्लम की तरह भी देखते हैं तो वहां पे भी अगर हम देखेंगे तो फंड्स हैव बीन वन ऑफ द इश्यूज, राइट? अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स हैव बीन वन ऑफ द इश्यूज, राइट? सो कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. चलिए आगे चलते हैं. तो साउथ साउथ कोऑपरेशन है क्या चीज? बेसिकली साउथ साउथ कोऑपरेशन जो है उसको डिफाइन किया गया है एज अ प्रोसेस वेयर टू और मोर डेवलपिंग कंट्रीज परस्यू इंडिविजुअल और शेयर्ड कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स. सो दो या दो से अधिक आपकी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो एक शेयर्ड गोल, शेयर्ड डेवलपमेंट गोल की तरफ आगे बढ़ रही हैं और इट मे बी इंडिविजुअल डेवलपमेंट ऑल्सो एंड इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ स्किल्स, रिसोर्सेज एंड टेक्निकल नो हाउ, राइट? तो साउथ साउथ कोऑपरेशन में टेक्निकल नो हाउ यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है कंट्रीज के बीच में, डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में वो होता है, स्किल जो ट्रांसफर है वो होता है और साथ ही साथ जो रिसोर्सेज है वो भी ट्रांसफर होती हैं डेवलपमेंट के लिए, राइट? तो म्यूचुअल डेवलपमेंट की बात कर रहा है ये साउथ साउथ कोऑपरेशन, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो एक साथ मिलके एक दूसरे के डेवलपमेंट एफर्ट्स में सपोर्ट कर रही हैं, राइट? नाउ इट इन्वॉल्व्स गवर्नमेंट्स. कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं? अगर हम साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात करें तो जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें गवर्नमेंट्स तो इन्वॉल्व होती ही है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, सिविल सोसाइटी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो पार्ट ऑफ इट. academia and the private sector also plays an important role, right? It acts as a complement, not a substitute to north south cooperation. ये important चीज है समझने वाली कि साउथ साउथ कोऑपरेशन जो है इट शुड बी सीन एज अ कॉम्प्लीमेंट,
साउथ साउथ कोऑपरेशन शुड बी सीन एज अ कॉम्प्लीमेंट एंड नॉट एज अ सब्सटीट्यूट टू द नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन, राइट। तो ये सब्सटीट्यूट नहीं है। नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन यानी कि डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री के बीच में जो कोऑपरेशन है, दैट इज नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन, राइट। तो साउथ साउथ कोऑपरेशन is a complementary approach, it supports the north south cooperation, right। अब हम समझ लेते हैं कि triangular cooperation क्या चीज है, किस बारे में ये बात करता है। It refers to the partnership between developing countries supported by the developed nations और द मल्टीलेटरल एजेंसीज, ठीक है। जो डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में जो पार्टनरशिप है, दैट इज बीइंग सपोर्टेड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज एज वेल एंड मल्टीलेटरल एजेंसीज। मल्टीलेटरल एजेंसीज क्या होती हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF हो गया आपका, वर्ल्ड बैंक हो गया आपका, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, ये सारी मल्टीलेटरल एजेंसीज हैं जो कंट्रीज के डेवलपमेंट एजेंडा में मदद करती हैं, है ना। तो इसकी ही बात कर रहा है ये ट्रायंगुलर कोऑपरेशन, पार्टनरशिप बिटवीन द डेवलपिंग कंट्रीज सपोर्टेड बाय डेवलप्ड नेशंस और द मल्टीलेटरल एजेंसीज, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि जैसे अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था, न्यूज़ में था, अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है, जिसके लिए जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है वो जापान से हो रहा है। शिंकेनसेन टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ की जाएगी, है ना। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है वो बनाया जाएगा। तो दिस कैन बी ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ मेन एम जो है इसका साउथ साउथ एंड ट्रायंगुलर कोऑपरेशन जो है, उसका मेन एम क्या है? एम इज टू फोस्टर सेल्फ रिलायंस एंड कलेक्टिव रेजिलियंस अमंग द डेवलपिंग नेशंस, ठीक है। कलेक्टिव रेजिलियंस डेवलप करना जो मेन एम है जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके बीच में, राइट। इट विल स्ट्रेंथन द कैपेसिटी स्ट्रेंथन करेगा और टेलर मेड सिचुएशंस के लिए वैसे ही सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू द लोकल कॉन्टेक्स्ट। अब हम डेवलपिंग कंट्रीज की अगर बात करते हैं तो टू डिफरेंट डेवलपिंग कंट्रीज which are located at different places, अपने जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उनकी जो नीड्स है वो अलग होगी और उनकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो भी बहुत ज़्यादा अलग होंगी, राइट। तो उन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए टेलर मेड सिचुएशंस के हिसाब से सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा ये जो आपका साउथ साउथ ट्रायंगुलर कोऑपरेशन है, ये इसका काम है, ये एम है इसका, राइट। प्रमोटिंग द म्यूचुअल बेनिफिट एंड सॉलिडारिटी, म्यूचुअल बेनिफिट, सॉलिडारिटी और इक्वालिटी को प्रमोट करना, ये इसका एम है, इसलिए ये इसका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। याद रखना, म्यूचुअल बेनिफिट, सॉलिडारिटी एंड इक्वालिटी बिटवीन द कंट्रीज कोलैबोरेटिंग, ठीक है। फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स द डेवलपिंग नेशंस बिल्डिंग द स्किल्स, स्किल बिल्डिंग में मदद करता है। शेयरिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस, राइट। सम ऑफ द प्रैक्टिसेस जो एक कंट्री में बहुत यूजफुल है, दे शुड बी शेयर्ड विद अनदर कंट्रीज, तो वहां पे भी वो इम्प्लीमेंट करी जा सके, राइट। तो इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट शेयरिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एक्सेस ऑफ अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी टू सॉल्व द लोकल डेवलपमेंट चैलेंजेस, राइट। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट स्ट्रेंथनिंग द कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर, कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर जो है उसे इंप्रूव करने की बात करता है ये ग्लोबल साउथ का, so that it can help in shaping the international policies and multilateral institutions, ठीक है। तो multilateral institutions में अपनी वॉइस को, है ना, अपनी वॉइस जो है उसको एक रिप्रेजेंट करने के लिए भी एक तरीके से ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज को, राइट। और वहाँ पे जो ग्लोबल साउथ इश्यूज फेस कर रहा है, सम ऑफ देम आर एक्चुअली कॉमन इश्यूज, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज का इशू ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज आर फेसिंग, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें डिबेट ये है कि क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो फायदा है दैट हैज बीन टेकन बाय द डेवलप्ड कंट्रीज मेजरली, तो उसके जो अभी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उन पे इतने ज़्यादा क्यों पड़ रहे हैं, राइट। सो देयर हैज़ बीन दिस डिबेट ऑफ अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस ऑन द डेवलपिंग कंट्रीज, राइट। तो ये वाला एक इशू है। साथ में इनकरेजिंग कंट्रीज टू पूल रिसोर्सेज, रिसोर्स पूलिंग की बात हो रही है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो रिसोर्स पूलिंग कर सकती हैं और साथ में कोलैबोरेट कर सकती हैं ताकि जो कॉमन इश्यूज हैं उनके सॉल्यूशंस निकाले जा सके, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, हेल्थ क्राइसिस और ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स अभी इस समय का एक वन ऑफ द मेजर इश्यूज है which the world is facing, given that most of the developed countries are actually using tariff and non tariff barriers, protectionism की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो phenomena है जिसे हम deglobalization भी कहते हैं, that phenomena is also on the rise. So given all these context, ये सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए ग्लोबल साउथ जो है उसका एक साथ आना बहुत जरूरी है।
in impact and the future prospect, what could be the impact and future prospect? So since its establishment, the India UN Development Partnership Fund has supported 75 projects across the 56 countries. So India and United Nations Development Partnership Fund has basically supported 75 projects across the 56 countries, right? Also, the recent efforts included राइस फोर्टिफिकेशन एंड सप्लाई चेन प्रोजेक्ट्स इन नेपाल. तो ये साउथ साउथ कोऑपरेशन के अंदर क्या एफर्ट्स लिए गए हैं उनके एग्जांपल्स हैं. ठीक है, इंडिया ने क्या क्या एफर्ट्स किए हैं साउथ साउथ कोऑपरेशन के अंदर. 75 लगभग प्रोजेक्ट्स 56 कंट्रीज के अंदर सेटअप किए हैं. ठीक है, और क्या एफर्ट्स लिए गए हैं राइस फोर्टिफिकेशन का, राइस फोर्टिफिकेशन और सप्लाई चेन प्रोजेक्ट्स जो है उस पर वर्क किया गया है नेपाल में एंड द लाओस पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में भी. ठीक है, इन दोनों कंट्रीज में इंडिया ने सप्लाई चेन जो प्रोजेक्ट्स है उन पे वर्क किया हुआ है. एंड द थीम फॉर यूएन डे फॉर साउथ साउथ ट्रायंगुलर कोऑपरेशन 2025, राइट. So the theme for the UN Day for South South Triangular Cooperation 2025 emphasizes innovation and new opportunities, right? It emphasizes innovation and new opportunities जो 2025 की जो थीम है आपकी इसकी. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर कि साउथ साउथ कोऑपरेशन या ट्रायंगुलर डेवलपमेंट की जो हम बात कर रहे हैं व्हाट इट इज रिलेटेड टू और कैसे ये आने वाले समय में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. चाहे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, चाहे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की बात करें, या फिर हम जो ट्रेड है डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड है उसको प्रमोट करने की बात करें, या तो फिर हम ग्लोबलाइजेशन के जो इम्पैक्ट्स हैं उसकी बात करें. तो इन सारे इश्यूज में या हम मल्टीलेटरल जो एजेंसीज हैं, जो फोरम्स हैं, ग्लोबल फोरम्स हैं, वहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके इश्यूज जो हैं उनके बारे में जो डिबेट है उसकी बात करें. इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है टुवर्ड्स raising the voice and talking about their side, right, presenting their side in the multilateral institutions and at the global forum. I hope I'm clear. Thank you so much.